Hello, everyone. If you're a sportsman or if you're thinking to make your career in sports, if you're planning your further studies in sports, और अगर आप एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं और आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं and if you want to make your further career and enhancement in sports, then sports is one of the most glamorous areas where you can work in. So I would all request you that watch this video till end and get benefit out of it. Hello everyone, I'm Nama Ashish Prem Singh. I'm working as Associate Professor in Physical Education in Motilal Nehru College, University of Delhi. Now this video is meant for those जो स्कूल लेवल पे हैं, अभी 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th में हैं, 11th में हैं और जो खेलते हैं, they are playing sports or they are thinking of making futures in sports. Then you have so many options after 12th standard. The first thing that you should do is you should opt physical education as one of the subjects in your 12th standard. So once you take physical education as one of your subjects in 12th standard, you get avenues to get admission in universities who provide sports basic education. Now let me tell you out of my personal experience. I've worked in almost all verticals of sports. I joined as lecturer in physical education in Sports Authority of India. Then I'm working in Delhi University. I've worked in many federations. I've worked in Indian Olympic Associations. I've worked as director, organizing committee Commonwealth Games. I've worked as deputy director in South Asian Games, Lusophonia Games, and I've come across several people, those who work in different verticals. So once you take a physical education as your career, or sports as your career, that doesn't mean that you are limited only to physical education and sports. You still have a variety of areas where you can work in. If we broadly divide career as physical educationist, you can divide into two. One is academically and academics and others. Now, what is academics? In academics, you can become a physical education teacher, you can become an adapted physical education teacher, you can also become an athletic director, you can also become a sports director or a sports trainer. The second part is you can become coach as far as academic is concerned, and you can go for sports coaching, you can work as personal trainer. One of the emerging areas is strength and conditioning coach, and sports skill trainer is also one of the areas where you teach new techniques or the correct way of performing a technique. Then one important thrust area which is very much prevalent in the वेस्ट के अंदर एक बहुत अच्छा एरिया है स्पोर्ट्स साइंस का, जहां पे यू कैन टेक अप योर करियर इन स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी. You can also take up as sports nutritionist, a sports analyst, and also as a physical therapist or athletic trainer. Now all these are highly specialized areas. अगर आप देखिए कि एक इंडिया टीम है तो इंडियन टीम में एक हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी होता है, और वो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपना एक्सपीरियंस से बनता है, लेकिन उससे पहले वो उसने कई वर्टिकल्स में काम किया होता है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. सो इफ यू आर वर्किंग planning to take up sports science as a career, you have ample of opportunities in that area. Then one of the areas which is nowadays very prevalent is sports management. काफी लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना चाहते हैं और करते हैं. इंडिया में भी काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, अब्रॉड भी काफी इंस्टीट्यूट्स हैं. तो अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करते हैं तो आपका एज ए स्पोर्ट्स मैनेजर या फिर एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर एक रास्ता खुल जाता है. तो आप वो कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स एजेंट बन सकते हैं. स्पोर्ट्स एजेंट जैसे टेक फॉर एग्जांपल अभी एशियन गेम्स होने वाले नगोया जापान के अंदर सितंबर में. तो उस उधर वहां पे अरेंजमेंट करना होता है, टीम्स जाएंगी अलग अलग कंट्रीज की, उनके रहने का, प्री गेम्स ट्रेनिंग का. तो ये सब कौन देखेगा? तो स्पोर्ट्स एजेंट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड एरिया देखते हैं. पर्सनल एजेंट्स भी रहते हैं, जैसे टॉप एथलीट्स हुए, उसेन बोल्ट हुआ या कोई टेनिस प्लेयर हुआ, तो उनका पर्सनल एजेंट होता है जो सारा उनको मैनेज करता है. इवेंट कोऑर्डिनेटर स्पोर्टिंग इवेंट साल भर चलते रहते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे और कई ऐसे जानकार भी हैं जिन्होंने अपना करियर थ्रू एंड थ्रू एज ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर निकाला है, और वो काम कर रहे हैं. कभी आईपीएल में कर रहे हैं, कभी आईएसएल में कर रहे हैं, कभी कोई एशियन लेवल टूर्नामेंट या इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट इंडिया या अब्रॉड होती है तो वहां जाके करते हैं. तो ये इवेंट कोऑर्डिनेटर भी एक बहुत अच्छा एरिया है. फैसिलिटी मैनेजर भी हैं. फैसिलिटी मैनेजर्स या वेन्यू मैनेजर्स वो होते हैं जो एक वेन्यू का ध्यान रखते हैं. आजकल बहुत सारी एकेडमीज खुल गई हैं, उनको मेंटेन करना, उनके उसका मार्केटिंग करना, तो ये भी एक अच्छा एरिया है. कुछ ऐसे हैं जैसे कि आप स्पोर्ट्स, आप जर्नलिज्म, नॉर्मल जर्नलिज्म करते हैं,
और वहाँ से नॉर्मल जर्नलिज्म करने के बाद आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो आप एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप एज अ ब्रॉडकास्टर या फिर एज अ कमेंटेटर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए अनाउंसर और कमेंटेटर के बीच में डिफरेंस है। अनाउंसमेंट इज फॉर द इवेंट, जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ पे अनाउंसिंग करते हैं कि द नेक्स्ट इवेंट या द नेक्स्ट बाउट, उसके बारे में, दैट इज अनाउंसमेंट। बट ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो बोलते हैं, जो व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं कमेंट्रेटर्स। सो स्पोर्ट्स कमेंट्री भी एक पर्टिकुलर, एक ऐसा एरिया है स्पेसिफिक, जिसमें बहुत सारे जनों ने अपना करियर बनाया है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट, ये भी बहुत एक अच्छा करियर है। आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर या सॉकर वर्ल्ड कप देखिएगा, तो उसके अंदर पूरा एनालिसिस होता है कि किस टीम किसके साथ खेली, कितने गोल्स हुए, कितने मिसेस हुए, और इवन टेक्निक एनालिसिस होती है कि वो बैटिंग कैसे करता है या उसकी किक कैसे मारता है। तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी एक बहुत अच्छा एरिया है। स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स भी इससे रिलेटेड ही है। और एडवांस्ड रिसर्च स्पोर्ट्स के अंदर ये भी एक अच्छा एरिया है। अगर आप एसोसिएट या प्रोफेसर बन जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, आप अलग अलग कंट्रीज घूम सकते हैं। नॉट ओनली पीएचडी, बट यू कैन ऑल्सो गो हायर देन पीएचडी, डिलीट भी होती है स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो भी आप पीएचडी एंड अबव भी कर सकते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पोर्ट्स करियर, देन यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप बिल्कुल घबराए ना। पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप आराम से अपने बेटे को स्पोर्ट्स के अंदर एक करियर बना सकते हैं। और जैसे कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में, तो मेरी जो सैलरी पैकेज है वो किसी और एसोसिएट प्रोफेसर के बराबर ही होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो रही है और मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मेरी कम हो रही है। तो सैलरी पैकेजेस वाइज भी ये बहुत अच्छा करियर है। और जो लोग इवेंट्स करते हैं उनके तो बहुत ही अच्छी पैकेजेस तक जाते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स करियर चुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल हेजिटेट ना करें। पेरेंट्स आप एंकरेज करें, एंड यू कैन वॉच माई वीडियोज एंड यू कैन प्लान योर करियर अकॉर्डिंगली। थैंक यू।